हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस। अभी तक हम लोगों ने डिस्क्रीट वैल्यूज पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की। हम लोगों ने एक डोमेन के लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू द अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, सो लेट्स मेक अ हेडिंग, प्रॉपर्टीज of continuous functions. Suppose beta there are two functions f and g. Let fx and gx are two real valued continuous function and they are continuous, let's say at x is equal to a. Okay, what are f and g? F and g are two separate functions. Both functions are continuous at x is equal to a and both functions are real valued functions. What does it mean? इसका मतलब यह है कि x की real values के लिए fx and gx both will give you real values. So now if fx and gx are continuous function at x is equal to a, then there are few properties which we need to remember. First property is fx plus gx is continuous at x is equal to a. fx separately x is equal to a पर continuous है, gx separately x is equal to a पर continuous है. Then we can combine these two functions with an addition mark, addition sign, and we can say कि fx plus gx is also continuous. Example के लिए suppose modulus of x is a continuous function in its domain, okay, and x plus x square, this function is a polynomial function. This function is also continuous in its domain. So suppose if we take any point, let's say x is equal to 0, तो x is equal to 0 पर mod x भी continuous है, x plus x square भी continuous है. Okay, तो we can say कि mod x plus x square is also a continuous function. बहुत ही obvious टाइप की थ्योरम है, but we need to remember कि दो functions का addition continuous होगा यदि हर एक function continuous है तो. Similarly subtraction के लिए भी same rule है, fx minus gx is continuous at x is equal to a. Again same condition, fx and gx both are separately continuous at x is equal to a. Third property है बच्चों, fx into gx is also continuous, is continuous at x is equal to a. तो fx और gx दो फंक्शंस हैं, दोनों कंटिन्यूस हैं सेपरेटली at x is equal to a, तो उन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज sin x, लेट्स से fx is sin x and gx is x square. Okay, sin x is continuous at x is equal to 0. gx is also continuous at x equal to 0. Then fx dot gx, that is x square, okay, x square sin x, the product of, मैंने order change कर दिया, it's okay, x square dot sin x is also a continuous function. ठीक है, तो एग्जाम में कभी ऐसा आ गया कि एक से ज़्यादा फंक्शंस आपको दिख रहे हैं कि ये इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर फंक्शंस, तो आप उन फंक्शंस को इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हो कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं. देन आप उसको ओवरऑल फंक्शन को कंबाइन करके बोल सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है. ठीक है. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिवीजन ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस इफ दे आर सेपरेटली कंटिन्यूस. fx upon gx is continuous at x is equal to a. बट इसमें बच्चों एक कंडीशन होती है कि gx की वैल्यू जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी
की जांच की जा रही है तो GA शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि GA 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। दिस एग्रीगेट फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड एट x इक्वल टू a इफ GA इज 0। तो कंडीशन याद रखना है कि इफ देयर इज अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए एट द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है, लैम्डा fx। लैम्डा क्या है? एक कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट जब एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो I can say कि fx is continuous at x, if fx is continuous at x equal to a, then lambda times fx is also continuous at x equal to a, is continuous at x is equal to a. So lambda is क्या है? Lambda is a constant. तो जो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। समेशन ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ ईच फंक्शन इज कंटिन्यूअस इंडिविजुअली। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस। डिवीजन ऑफ टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसमें एक कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। लास्ट पॉइंट है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे निकाली जाती है। सपोज दो फंक्शंस हैं hx और gx। ये दोनों ही फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो एक फंक्शन नया बनाते हैं हम लोग fx और उसको लिखते हैं h ऑफ gx। तो ये बन गया आपका कंपोजिट फंक्शन। बच्चों इसमें एक चीज ध्यान देना कि सपोज y इज इक्वल टू fx इज अ फंक्शन, तो x जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे? सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9। तो यहां x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड करती है, तो x हो गया इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट। तो जब हम लिखते हैं hx, gx या fx तो उसमें x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये पूरी वैल्यू क्या है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि डिफरेंट वैल्यूज ले सकती है। वेरिएबल चीज यानी इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, तो वेरिएबल होती है। अच्छा, अब ये h ऑफ gx क्या हो गया? ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको लिखते हैं h o g x। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सपोज कि कोई फंक्शन हमारे पास मिला fx इज इक्वल टू h o g यानी h ऑफ gx। तो hx और gx इंडिपेंडेंटली यदि कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं तो वी कैन डिड्यूस द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। उसके लिए क्या होता है एक बार देखेंगे। सपोज इस फंक्शन को लेके हम चल रहे हैं, तो यहां क्या होना चाहिए? gx शुड बी continuous at x is equal to let's say c and hx should be continuous at x is equal to what? क्या आएगा x की जगह? यहां देखो hx में x की जगह है gx। ठीक है, तो यहां आएगा x की जगह, क्योंकि ये hx फंक्शन है, hx की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो hx शुड बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू gc। समझे बच्चों? तो बाहर वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए gc पर, अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए x इज इक्वल टू c पर। यदि ऐसा होता है, यदि ये दो कंडीशंस पहली और दूसरी फुलफिल होती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? द कंपोजिट फंक्शन
composite function f(x) is equal to hog(x) is continuous function at x is equal to c। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ x और इसका पूरा का होल का मॉड्यूलस। ये एक फंक्शन दिया हुआ है। इसमें आप देखो ध्यान से कि बाहर वाले मॉड्यूलस साइन के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये फंक्शन भी क्या है अपने आप में 1 2 3 स्टेप से या 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। तो हम इस फंक्शन को कॉम्पोजिट फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए लेट, ये सॉल्यूशन है, लेट gx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसको मैंने एक नया फंक्शन नाम दे दिया gx, और जो बाहर वाला फंक्शन है वो जो फंक्शन बाहर वाला फंक्शन क्या कर रहा है, अंदर वाले फंक्शन को मॉड्यूलस में रखे हुए है। तो एक नया फंक्शन बनाया hx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है जी। तो fx क्या हो जाएगा इन दोनों फंक्शन को देखते हुए, fx इज इक्वल टू h ऑफ gx। gx तो हो गया अंदर वाली वैल्यू और hx हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। तो अब आपको ये चेक करना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है। अब वर्ड्स पे ध्यान देना बच्चों, मैंने बोला दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। क्वेश्चन है कि चेक इफ fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट। मैंने ये नहीं बोला कि दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट, x इक्वल टू 0 भी बोल सकता था मैं, x इक्वल टू 1 भी बोल सकता था, 2 भी बोल सकता था, कुछ भी बोल सकता था, बट मैंने बोला चेक इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब कोई पॉइंट दिए बिना पूछा जाता है कि चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो उसका मतलब क्या होता है, हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन अपने डोमेन में हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और जो बाहर वाला फंक्शन है वो उन सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होना चाहिए जिन पे ये जो वैल्यूज हैं उस पे सारे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो लेट्स टेक इट वन बाय वन। ओके, सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन gx, दिस, सिंस gx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। मॉड एक्स अपने डोमेन के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है और इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसका डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। तो ये पूरा फंक्शन जो है ये इस टाइप का हो गया fx प्लस gx, ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। और ये क्या हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन। तो हमें मालूम है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं इन देयर डोमेन, और mod x is also a continuous function. तो addition of these two function is continuous if each of these function is continuous at particular point or it's on or in their whole domain. तो ये अपने डोमेन में continuous है, ये भी continuous है, तो gx is a continuous function. So we will write here, since 1 minus x is a polynomial function, hence it is continuous in its domain. Modulus of x is also it's a modulus function and it's also continuous in its domain. So gx is a continuous function, continuous function, ठीक है। फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इन इट्स डोमेन। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट पार्ट इज hx. नाउ hx इज मॉड ऑफ x, और हम जानते हैं कि x की किसी भी वैल्यू के लिए, राइट, gx क्या करेगा,
gx में जब आप x की डिफरेंट वैल्यूज रखोगे तो ये भी आपको एक रियल वैल्यू ही देगा, यानी gx का जो रेंज है वो भी रियल वैल्यू का सेट है। तो आप देखोगे कि x जो आएगा विच इज एक्चुअली द gx, है ना, ये देखो ये h ऑफ gx, तो gx के अंदर जो भी वैल्यूज आएगी वो रियल वैल्यूज होगी। तो यदि hx रियल वैल्यू पर कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो वी ऑलरेडी नो कि मॉड ऑफ x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन, देयरफॉर hx इज continuous function. Now using this theorem, what theorem? कि if fx is h of gx and gx is continuous at any point and hx is continuous at x equal to gc, then the composite function is continuous. Therefore h of gx is continuous function.